That name is present tense. वो नाम वर्तमान काल है। Not I was, will be, but I am ever the same yesterday, today, and forever. मैं था, मैं होऊंगा नहीं, परंतु मैं हूँ, सदा एक सा, कल, आज और सर्वदा एक सा। He is present tense. वो वर्तमान काल है। That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. वो जो कि इब्रानियों 13:8 से तुलना करता है, यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। It's still the prophesied word. वो अब भी भविष्यवाणी किया हुआ वचन है। In the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. और सभा जो वचन के साथ मेल खाती है, इस दिन का अनुभव जो उसके पास है। The reformers had it. सुधारकों के पास ये था। Oh, but this is another day. See what day we're living in. ओ, परंतु ये दूसरा दिन है। हम देखते हैं कि हम किन दिनों में रह रहे हैं। Just as he couldn't come in the days as he came on earth. जैसा कि वो इन दिनों में नहीं आ सका जब वो पृथ्वी पर था। In the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied. उस प्रकार जैसे मूसा आया या कोई और भविष्यद्वक्ता आया, ये भविष्यवाणी नहीं की गई थी। And in this last days, it's prophesied to come this way. और इन अंत के दिनों में ये भविष्यवाणी की गई है कि वो इस प्रकार आएगा। It can't come in the form of Luther's revival. वो लूथर की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता। It can't come in the form of Wesley revival. वो वेस्ली की बेदारी के रूप में नहीं आ सकता। It's a restoration. Now, ये वापस आने का समय है। it's a time that it must come back to the original sunlight. The original. ये वो समय है कि उसे मूल सूर्य के उजाले पर आना चाहिए, उसी मूल। Oh, how we could lay the scriptures in on that. ओ, हम कैसे पवित्र वचन को इसमें उस पर रख सकते हैं। And you theologians, what part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise. और तुम धार्मिक ज्ञानियों, तुम संसार के कौन से भाग से हो, तुम जानते हो कि ये सत्य है, ये प्रतिज्ञा है। That's what makes the people so odd. यही वो है जो लोगों को बहुत अजीब बना देता है। That's what makes the oddballs that you call them. यही है वो जो विचित्र बना देता है, जिनको कि आप कहते हो। It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. ये इसलिए है क्योंकि वे इसका पर्दा रीति रिवाजों पर से खुल गया है और वे इसे देखते हैं। He's the same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। It's the promise of God, and we cannot go against that because the scriptures cannot be broken. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम इसके विरोध में नहीं हो सकते क्योंकि पवित्र वचन असफल नहीं हो सकता। Yes, we find that he promised that he had emptied himself into his people. हाँ, हम पाते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अपने आप को लोगों में उंडेल देगा। And he's the same yesterday, today, and forever. और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। Moses, after he went down into Egypt and declared this, मूसा जब वो मिस्र में चला गया होगा, इसके पश्चात उसने ये घोषित किया। then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire and set the mountain on fire. तब पिता ने उसका ये संदेश सीने पर्वत पर उसी आग के खंभे में और पर्वत को अग्निमय करके प्रमाणित किया। Did we notice the one he gave the promise to, he brought him forth with the word. क्या हमने उस एक पर ध्यान दिया कि उसने प्रतिज्ञा दी, वो उसे वचन के साथ लेकर आया। He had the commandments, and to have this commandment, he had to. उसके पास आज्ञाएं थीं और उन आज्ञाओं को पाने के लिए उसे चाहिए था कि The commandments was the word. The word had never come to the people yet. आज्ञाएं वचन थीं, वचन आज तक कभी लोगों के पास नहीं आया। So the word always comes to the prophet. इसलिए वचन सदा भविष्यद्वक्ता के पास आता है। And he was the prophet for that hour. और वो उस समय के लिए भविष्यद्वक्ता था, Like Jesus was the word. जैसे कि यीशु वचन था। John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था और यीशु उसके पास पानी में आया क्योंकि वचन सदा भविष्यद्वक्ता के पास बिना रुकावट के आता है। The word comes to. वचन के पास आता है। So Moses, the word came to him, the commandments, and he had them. इसलिए मूसा वचन उसके पास आया, वे आज्ञाएं और उसके पास वो थीं। Now, while before the word was giving out and made manifest, Moses had to veil his face. अब क्यों?
इससे पहले वचन दिया जाता और प्रकट किया जाता, मूसा को अपने मुख पर पर्दा डालना पड़ा, For the Word wasn't completely made manifest. क्योंकि वचन पूरी प्रकार से प्रकट नहीं हुआ था। They know something had happened, वे जान गए कि कुछ घटित हुआ है, but they didn't know what it was, the roaring and thundering. They said, let Moses speak and not God. परंतु वे नहीं जान पाए कि वो क्या था, वो गर्जना और बिजलियों का चमकना, जब तक उन्होंने नहीं कहा हमसे मूसा बात करे और परमेश्वर नहीं। And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. और परमेश्वर ने कहा, अच्छा मैं ये करूंगा, अब आगे से मैं इस प्रकार से प्रकट नहीं होऊंगा, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा। So I'll speak through my prophet. इसलिए वो मैं अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोलूंगा। Now, if Moses, with the natural law, अब यदि मूसा शारीरिक व्यवस्था के साथ था, as Paul in 2 Corinthians sure has revealed to us, जैसा कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों में हम पर प्रकट किया है, had to veil his face with the natural, उसे अपने मुख को प्राकृतिक रूप में छिपाना ही था। how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him? तो फिर आत्मिक कितना और अधिक महिमा युक्त ना होगा और अविश्वासी से छिपा हुआ होगा, इससे पहले कि वो उन पर प्रकट हो। How much more would they call? वो कितना अधिक क्यों न कहलाएंगे। Moses was an oddball. मूसा एक विचित्र व्यक्ति था। How much more will they call you, who's broke through the veil? तो वे आपको और कितना अधिक क्यों न कहेंगे, जिन्होंने पर्दे को पार किया है, Has went into the pillar of fire, has come out with the blessing. और आग के खंबे में चले गए हैं और आशीष के साथ निकल कर आते हैं। And now you are veiled. The people can't see it, they can't understand it. और अब आप पर्दे में हैं, लोग इसे नहीं देख सकते, वे इसे नहीं समझ सकते। If the natural be glorious, how much more will the supernatural? यदि स्वाभाविक इतना तेजोमय था, तो दिव्य अलौकिक कितना अधिक तेजोमय होगा। If the natural which had an end to it was to be glorious, यदि वो स्वाभाविक जिसका कि अंत हो जाना था तेजोमय था, how much more this which has no end to it will be glorious. तो ये कितना अधिक तेजोमय होगा जिसका अंत नहीं है। But still it's veiled. It's veiled not to the believer but to the unbeliever. He cannot see it. परंतु इस पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। ये विश्वासियों के लिए पर्दे में नहीं है, परंतु अविश्वासियों के लिए वो इसे नहीं देख सकता। God always veils himself from the unbeliever. परमेश्वर सदा अपने आप को अविश्वासी से छिपाता है। Traditions hide it like they did then. They do it today. रीति रिवाज इसे छिपाते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, वे आज भी करते हैं। That was a spiritual veil that we have now, where the natural veil was there. ये आत्मिक पर्दा है जो अब हमारे पास है, जबकि वहाँ स्वाभाविक पर्दा था। Vindicated by the prophet with the written word, a prophesier. जो कि भविष्यद्वक्ता द्वारा, भविष्यवाणी करने वाले के द्वारा, उस लिखे हुए वचन के द्वारा प्रमाणित हुआ था। One who comes with the written word to make it plain. एक वो जो लिखित वचन के साथ आता है कि इसे स्पष्ट करे। They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain. वे जानते थे कि वहाँ वचन है, परंतु वे नहीं जानते थे कि इसका क्या अर्थ है, और मूसा ने इसे स्पष्ट किया। He said, the commandment says this, and this is why. उसने कहा आज्ञा ये कहती है और ये क्यों है। He made it plain. And before it was made plain, it was veiled. उसने ये स्पष्ट कर दिया, और इससे पहले कि ये स्पष्ट किया जाए वो पर्दे में था। And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. और इसी प्रकार आज भी है, ये लोगों के लिए पर्दे के पीछे है, जब तक प्रकट न किया गया और लोगों को स्पष्ट नहीं किया गया। God, the mighty God, veiled in human flesh, the word. परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मानव देह के पर्दे में रहा वो वचन। Notice, now we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. ध्यान दें, अब हम पाते हैं कि ये अविश्वासी के लिए छिपा रहा, परंतु विश्वासी पर प्रकट हुआ। Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him. ध्यान दें, मूसा को इस आग के खंबे में अकेले जाना था, उसके साथ कोई और नहीं जा सकता था। It was not
What does that speak to us? वो ये नहीं था कि ये हमसे क्या कहता है That you don't come into this by joining a Pentecostal group. कि आप इसमें पेंटिकॉस्टल झुंड के सदस्य बनकर नहीं आ सकते। See, he never revealed it to a group. He revealed it to an individual. समझे, वो कभी भी झुंड पर प्रकट नहीं हुआ, उसने ये व्यक्तिगत प्रकट किया। And that's the way it is today. और आज भी इसी प्रकार से है। You say, I belong to a church. I belong to this, but that won't work. आप कहते हैं मैं एक गिरजे से संबंधित हूँ, मैं इससे संबंध रखता हूँ, परंतु इससे काम नहीं चलता। See, and for anyone to try to follow Moses to impersonate it was death. समझे, और कोई भी जो पीछे चलकर मूसा की नकल करने का यत्न करे तो वो मृत्यु थी। And so is it today, spiritual death to try to impersonate. और ऐसा आज भी है, नकल करना आत्मिक मृत्यु है। That's what tonight we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons. यही है जो कि आज रात्रि हम संसारिक तुलनाओं के बढ़ावे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। Somebody try to act like it and live a different life. कोई इस तरह से करने का यत्न करता है और भिन्न जीवन जीता है। Can drink, can smoke. Women can live almost any way they want to. And like the world. मदिरा पान कर सकते हैं, धूम्रपान कर सकते हैं, स्त्रियां किसी भी प्रकार से रह सकती हैं जैसा चाहें और संसार की तरह। And stay home and watch television and the things of the world and still call themselves Pentecostals. और घर पर रहकर टेलीविजन देखें और संसार की चीजें और फिर भी अपने आप को पेंटेकोस्टल कहलाती हैं। They are trying to impersonate a genuine. It's never been revealed to them yet. वे किसी मूल वस्तु का नाटक करने का यत्न कर रहे हैं, तब भी ये उन पर कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। When it is revealed, it's glorious, and something takes that out of you when you walk in there. You become a veil. जब ये प्रकाशित हो जाता है तो ये तेजस्वी है। जब आप उसमें चलते हैं तो आप में से कुछ निकाल देता है और आप एक पर्दा बन जाते हैं। It just won't work, and to impersonate it was death. ये बस ये नहीं चलेगा और इसका नाटक करना ये मृत्यु था। Moses veiled, he was the living word to the people. मूसा पर्दे में था, वो लोगों के लिए जीवित वचन था। And today the people that are veiled are the same thing. और आज लोग जो पर्दे में हैं, वे भी वही चीज हैं। They are written epistles, read of all men. वे लिखित पत्रियां हैं जो सब मनुष्यों द्वारा पढ़ी जाती हैं। Not a new epistle, but the epistle that's been written, made manifest. नई पत्रियां नहीं, परंतु वो पत्रियां जो लिखी गईं, प्रकट हुई हैं। It's those who believe the word and the promise of this day that God is pouring out His Spirit upon all flesh. ये वो है जो आज के लिए वचन और प्रतिज्ञा का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेल रहा है। And that is written epistles. और यही लिखी हुई पत्रियां हैं। And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are. और जब एक व्यक्ति शारीरिक रीति पर इसका नाटक करने का यत्न करता है तो ये वापस मार करता है। आपका जीवन दर्शाता है कि आप क्या हैं। One time there was a boy, he got in some trouble. एक बार एक लड़का था जो किसी मुसीबत में फंस गया। He was a good boy, but he went to court. वो एक अच्छा लड़का था, परंतु वो न्यायालय में गया। And the judge said, I find you guilty. I must punish you to life in prison. और न्यायाधीश ने कहा, मैं तुम्हें दोषी पाता हूँ, मुझे तुम्हें आजीवन कारावास देना चाहिए। He said, I want to try my own case. He said, I want to go in upon my record. उसने कहा, मैं अपना मुकदमा स्वयं लड़ना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं अपने लिखित अभिलेख को देखना चाहता हूँ। He said, you have no record. Your record is what's condemned you. उसने कहा, तुम्हारा कोई अभिलेख नहीं है, तुम्हारा जो भी अभिलेख है तुम्हें दोषी ठहराता है। And that's the way it is today. और आज भी ऐसा ही है। The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the lie. इसका कारण ये है कि कलीसिया ने वो उन्नति नहीं की जो करना चाहिए। ये अभिलेख है कि ये झूठी है। We must become more dedicated. और हमें और भी अधिक समर्पित होना चाहिए। We must believe every word of God. और हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन का विश्वास करना चाहिए। We must seek until that word is made real to us.
हमें तब तक खोज करनी चाहिए जब तक वचन हमारे लिए यथार्थ ना हो जाए। See, the record is what keeps us from entering in. समझे, अभिलेख वो है जो हमें भीतर जाने से रोकता है। But one time, परंतु एक बार to let you get out of this loop, कि आप इस फंदे से बाहर निकल जाएं, in this same court, इसी न्यायालय से the boy had no money. He could not pay it off. The fine was way in the thousands of dollars. लड़के के पास पैसा नहीं था, वो भुगतान नहीं कर सकता था, जुर्माना हजारों डॉलरों में था। But he had a big brother that came and paid it off for him. परंतु उसका एक बड़ा भाई था जो कि आया और उसके लिए भुगतान कर दिया। Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God. अब हमारे पास बड़ा भाई यीशु परमेश्वर का पुत्र है, And he come to pay it off for us if we'll just believe it and be able to enter into the veil with him. वो हमारे लिए भुगतान करने के लिए आया यदि केवल हम इसका विश्वास करेंगे और उसके साथ पर्दे के भीतर प्रवेश करने योग्य हो जाएंगे। Right? He is our Moses. Jesus is our Moses of today. हमारे मूसा के समान यीशु हमारा आज का मूसा है। Moses' veil was a living word to the people. मूसा का पर्दा लोगों के लिए जीवित वचन था। Today, Jesus veiled is the living word to the people, that Jesus in the church. आज यीशु लोगों के लिए जीवित वचन है कि यीशु कलीसिया में है। The Holy Ghost, the Son of God, पवित्र आत्मा परमेश्वर का पुत्र in the people, revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly same now. लोगों में आज के दिन वचन को प्रतिज्ञा के द्वारा बिल्कुल ठीक प्रकार से प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही अब। And remember, Moses did this and manifested this not to all the world, अब याद रखें, मूसा ने ये किया और प्रकट किया सारे संसार पर नहीं, but to the Exodus people. Just one class of people. परंतु निकले हुए लोगों पर, केवल एक प्रकार के लोगों पर। That was those who come out of in the Exodus. वे लोग थे जो निर्गमन में निकल कर आए थे। And today the Holy Spirit in the face of people who says divine healing is not right. और आज पवित्र आत्मा लोगों के सम्मुख जो ये कहते हैं कि दिव्य चंगाई ठीक नहीं है। When I was consulting a doctor, called me the other day of a little lady. जब मैं परामर्श कर रहा था उस दिन एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया, एक छोटी महिला। There's been 4 or 5 cases there of laying just at the point of death, giving hours. ओह, वहाँ 4-5 मरीज मृत्यु के समीप पड़े हुए थे जिनको कुछ ही घंटे मिले थे। And the Holy Spirit healed them. और पवित्र आत्मा ने उन्हें चंगा कर दिया। The doctor was questioning. He said, "How can this be?" डॉक्टर इस पर प्रश्न कर रहा था। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? Well, I said, "That's my patient." क्यों? उसने कहा, मैं ये मेरा मरीज है। I said, "It was, but now it was God's." मैंने कहा, ये था, परंतु अब ये परमेश्वर का है। It's his subject now. See? ये अब उसका विषय है, समझे? And so you see, the thing it is, और इसलिए आप ये चीजें देखते हैं, God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain, who tries to impersonate, who tries to join church. परमेश्वर एक निर्गमन को बुला रहा है कि शरीर के पर्दे के पीछे से निकलकर आ जाओ, और जो इसकी नकल करने का यत्न करते हैं, जो गिरजों की सदस्यता लेने का यत्न करते हैं। Not Methodist, Baptist, Presbyterian all together, but Pentecostal churches. मेथोडिस्ट नहीं, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन सब एक साथ, परंतु पेंटिकोस्टल कलीसियाएं। It is an individual affair. It's you and God. ये एक व्यक्तिगत मामला है, ये आपका और परमेश्वर का है। You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to go in. आपको ही अंदर जाना है, आपके झुंड को नहीं, आपकी कलीसिया को नहीं, आपके पास्टर को नहीं, परंतु ये केवल आप हैं जिसे अंदर प्रवेश करना है। I want you to notice another characteristic of Moses. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें मूसा की एक और विशिष्टता। When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was. जब वो बाहर आता है, जबकि वो भविष्यद्वक्ता था, एक महान पुरुष होने के नाते जो कि वो था। When he come out with the word, the people saw that he was changed. जब वो वचन के साथ बाहर आया, लोगों ने देखा कि वो बदल गया था। Something had happened to him. उसे कुछ हुआ था। When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person. जब वो उस समय के प्रमाणित वचन के साथ बाहर आया, वो आज्ञाएं, वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। And so will he be.
when you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this. और इसी प्रकार से आप भी जब आप मानव देह के पर्दे के पीछे से निकलकर आते हैं, जो कि इस प्रकार की सभा पर हंसेगा। That man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past. वो मनुष्य जो दिव्य चंगाई से ठोकर खाता है और कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त हो गए। You drop from behind that human veil there, the traditional veil. आप उस मानव देह के पर्दे से, रीति रिवाज के पर्दे से बाहर निकल आए, And everybody will know something happened to you. और हर कोई जानेगा कि आपको कुछ हुआ है। Like our honorable brother Jim Brown, I imagine most Presbyterians knows that something happened to him. हमारे आदरणीय भाई जिम ब्राउन की तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रेस्बिटेरियन या जानते हैं कि उसे कुछ हुआ था, Because he come from behind a traditional veil. क्योंकि वो रीति रिवाजों के पर्दे से बाहर निकल आया था। He saw something in the people that attracted him, and he came out from behind the veil. उसने देखा लोगों में कुछ है जो कि उसे आकर्षित कर रहा है, और वो पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया। When you come out from behind the veil, ठीक है, जब आप पर्दे के पीछे से निकल कर आते हैं, you'll be in full view of the people then that they can see that something has happened to you. तब आप लोगों के सामने पूरी तरह से दृष्टिगोचर होते हैं कि वे देख सकते हैं कि आपको कुछ हो गया है। The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer. अविश्वासी के लिए पर्दे के पीछे छिपा हुआ वचन, परंतु विश्वासी को संपूर्ण दिखने वाला। Jesus Christ the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। Then it was God. तो ये परमेश्वर था। In them days it was God in a man, His Son, Jesus Christ. उन दिनों में परमेश्वर मनुष्य में था, उसका पुत्र यीशु मसीह। We believe that, not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human, it was God in Christ. हम ये विश्वास करते हैं, केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं, न ही केवल एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव, ये परमेश्वर मसीह में था। God in a man, the fullness of the Godhead bodily in a man. परमेश्वर मनुष्य में, परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वरत्व देह में। God in a man, now it's God in man. अब ये परमेश्वर मनुष्य में, ये परमेश्वर मनुष्य में, समझे? The fullness of God in the Godhead bodily in His entire church. परमेश्वर की परिपूर्णता परमेश्वरत्व देह में, अपनी परिपूर्ण कलीसिया में Manifesting Himself, fulfilling His word. अपने आप को प्रकट कर रहा था, अपने वचन को पूरा कर रहा था। Now we find God, all ages, has had skin on it. अब हम पाते हैं परमेश्वर ने सब युगों में अपने ऊपर खाल रखी। God has been hid behind a veil. परमेश्वर पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। It just reminds me of a little story that happened down in the south. इससे अभी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई जो कि नीचे दक्षिण में घटित हुई। And so there's a Christian home. और इस प्रकार से एक मसीह परिवार था। And in this Christian home, they believed God. और ये इस मसीह परिवार में वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। And they thought that God protected them from all troubles, in which He does. और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने उन्हें सब संकटों से बचा रखा है, और जो कि वो करता है। And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old. और उनके एक जूनियर लड़का था, एक छोटा लड़का लगभग 7 या 8 वर्ष का। And he went to Sunday school and was a very fine little lad. और वो संडे स्कूल गया, और वो बहुत छोटा अच्छा लड़का था। But he was scared in a storm, especially when lightning was flashing. परंतु वो तूफान में इतना डरता था, विशेषकर जब बिजली चमका करती थी। And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed. एक दिन मैंने ये एक व्यक्ति को सुनाई थी, जब ये भाग सामने आया तो चंगा हो गया। The same minister said, "They make a God out of you, Brother Branham." इसी सेवक ने कहा, भाई ब्रनम, वे इसी कारण से आपको ईश्वर बना लेते हैं। Well, he was a critic, so I thought I'd just kind of break it off just a little bit, not to hurt, but just kind of. अच्छा, वो एक आलोचक था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा करूंगा, मैं इसे बीच में थोड़ा सा तोड़ दूंगा। आप जानते हैं कि किसी को दुख ना पहुंचे, परंतु एक प्रकार से। I said, "Is that too far from the Scripture to be that?" See? मैंने कहा, क्या ऐसा होना पवित्र वचन से बहुत अलग है?
समझे? I said, no, it isn't. I said, because Jesus called prophets gods. See? That's right. God. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि यीशु ने भविष्यद्वक्ताओं को ईश्वर कहा है। समझे? ये ठीक बात है, परमेश्वर। And they say, well, you people try to take the place of God. और वे कहते हैं, अच्छा तुम लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हो? That's not too far out. That's exactly what it is. It's exactly. ये बहुत दूर अलग नहीं है, ये वही है जो है, ये सही बात है। God manifested in flesh, just as He promised. परमेश्वर देह में प्रकट हुआ जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की थी। This little family, we find. हम ये पाते हैं कि ये छोटा परिवार। I told him this little story, which come to my mind just now. मैंने उसे ये छोटी कहानी सुनाई और जो कि अभी मेरे मस्तिष्क में आई। That one night it come up a storm and mother said to Junior, said, now you go on upstairs, son, and go to bed. कि एक रात्रि तूफान आया और माँ ने जूनियर से कहा अब तुम सीढ़ी से ऊपर जाओ बेटे और सो जाओ। He said, Mom, I'm scared. उसने कहा माँ मैं डरा हुआ हूँ। He said, ain't nothing going to hurt you. Go on up and go to bed. उसने कहा तुम्हें कोई भी चीज हानि नहीं पहुँचाएगी, ऊपर चले जाओ और सो जाओ। Little Junior laid up there in the lightning flashing around the windows, and the little fella got so nervous. छोटा जूनियर वहाँ जाकर लेट गया और खिड़कियों से बिजली चमक रही थी और ये छोटा बालक इतना डर गया। Sticking his head under the cover, and he could still hear the lightning, and see the lightning flash on the windows, and hear the thunder roar. अपना सर ओढ़ने में छिपा लिया और वो अब भी सुन सकता था उस तड़कने की आवाज को या बिजली की चमकने को, खिड़कियों से देख सकता था और गर्जन की आवाज सुन सकता था। So he said, Mama. इसलिए उसने कहा माँ। And she said, what do you want, Junior? और उसने कहा जूनियर तुम क्या चाहते हो? I said, come up here and sleep with me. बोला यहाँ आकर मेरे साथ सो जाओ। So she come up the steps like any good loyal mother would, and she came up. इसलिए वो सीढ़ी से एक अच्छी ईमानदार माँ जैसी होती है, सीढ़ी से ऊपर आई और वो ऊपर आई। She took little Junior in her arms and she said, और छोटे जूनियर को अपनी बाहों में लिया और उसने कहा Junior, mother wishes to speak to you just a moment. जूनियर माँ तुमसे कुछ देर के लिए बातें करना चाहती है। Said, all right, Mama. बोला ठीक है माँ। Said, now you must bear this in mind. कहा अब तुम्हें ये अपने मस्तिष्क में रख लेना चाहिए। We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God. हम बराबर गिरजे जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मसीही परिवार हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। And said we believe that in storms and whatever goes on, God is our protection. और कहा हम विश्वास करते हैं कि तूफानों में और चाहे जो कुछ होता रहे, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। He said, Mama, I believe every bit of that. उसने कहा माँ मैं इसका पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। But said when that lightning's so close, he said, I want a God with skin on it. परंतु कहा जब बिजली बहुत पास चमकती है, उसने कहा मैं परमेश्वर को खाल पहने हुए चाहता हूँ। So I think not only Junior but all of us feel that way. इसलिए मैं सोचता हूँ कि केवल जूनियर ही नहीं परंतु हम सब इसी प्रकार से अनुभव करते हैं। When we get together, when we pray one for the other, जब हम एक साथ जमा होते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, God with skin on it. परमेश्वर इसमें खाल पहने हुए होता है। And we find out here that God has always had skin on it. और हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर सदा अपने पर खाल पहने रहता है। When Moses seen him, he had skin on him. He looked like a man. जब मूसा ने उसको देखा, उसने अपने पर खाल पहन रखी थी, वो एक मनुष्य के समान दिखा। When God was behind the curtains, he had skin on him. जब परमेश्वर पर्दों के पीछे था, उसने अपने ऊपर खाल डाली हुई थी। And God tonight in His church is veiled in His church with skin on it. और आज रात्रि परमेश्वर अपनी कलीसिया में, अपनी कलीसिया के पर्दे में खाल पहने हुए है। He's still the same God tonight. आज रात्रि भी वो वही परमेश्वर है। We find that. हम यही पाते हैं। But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. परंतु अब जैसा कि कभी भी खाल का पर्दा जो कि रीति रिवाजों को पकड़े हुए है, They just can't believe it. That's God making them people act like that. वे कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो परमेश्वर उन्हें वो लोग बना रहा है जो उसकी तरह कार्य करें। See, it's because God's veiled in His church. देखिए ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का पर्दा ही उसकी कलीसिया है। In skin on it. खाल में, उस पर खाल। That's right. He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir. ये ठीक बात है कि वो अविश्वासियों से छिपा हुआ है और विश्वासियों पर प्रकट हुआ है। जी हाँ श्रीमान। Now, when the tradition veil of traditions of the elders and the word is broke through, और जब उनके रीति रिवाज का पर्दा
उनके पूर्वजों के रिवाजों का पर्दा और वचन निकल कर आया। Oh, of course, today then comes in plain view. We see him. ओ बिल्कुल आज तब सामने साफ दृष्टि में आता है, हम उसे देखते हैं। Deity again veiled in human flesh. दिव्यता फिर से मानवीय देह के पर्दे में है। Hebrews 1 said so, and also Genesis 18. इब्रानियों 1 में ऐसा कहा गया है और उत्पत्ति 18 में भी। Remember, God was a man standing there eating and talking with Abraham and told what Sarah was doing in the tent behind it. आपको याद है परमेश्वर एक मनुष्य था, वहाँ खड़ा था, खा रहा था और इब्राहिम के साथ बात कर रहा था और बताया कि सारा तंबू के पीछे क्या कर रही थी। And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. और यीशु ने कहा, जैसा कि सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। Deity veiled again in human flesh. दिव्यता फिर से मनुष्य देह के पर्दे में है। Now remember, Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. अब याद रखें, यीशु ने ये नहीं कहा था जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था। In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, लूका में 17वां अध्याय, मैं विश्वास करता हूँ 20वां 21वां पद वही कहीं आसपास में है। he said, and when the Son of Man is being revealed. उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। The Son of Man back in the church again, revealed in human beings. मनुष्य का पुत्र फिर से कलीसिया में है, मनुष्यों में प्रकट हुआ। Not Son of God, but the Son of Man again, back in His church again, in the last days. न कि परमेश्वर का पुत्र, परंतु फिर से मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में फिर कलीसिया में है। We find that He promised that in God's promises. हम पाते हैं कि उसने ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में की है। We notice another thing in the Old Testament. पुराने नियम में हम दूसरी चीजें देखते हैं। I have a scripture here in Exodus यहाँ निर्गमन में मेरे पास वचन है। that the old badger skins, what did it do? उन पुराने सुइसों की खालें उसने क्या किया? It hid the glory of God from the people. The badger skins. इसने परमेश्वर की महिमा को मनुष्य से छिपाया, सुइसों की खाल ने। The people couldn't see it because it was a skin that held it. कारण ये था कि लोग उसे देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो खाल थी जो उसे रोके हुई थी। The skin was, the glory of God was behind the skin. वो खाल थी, परमेश्वर की महिमा खाल के पीछे थी। And now the glory of God is behind your skin. और अब परमेश्वर की महिमा आपकी खाल के पीछे है। That's right. And the traditions don't see it. ये ठीक बात है और रीति रिवाज इसे नहीं देख सकते। It's inside the veil where His word was. ये पर्दे की अंदर की ओर है जहाँ उसका वचन था। What was on the inside of that skin? Back there, the old badger skins. पीछे वहाँ खाल के पीछे की ओर क्या था? उन पुराने सुइसों की खालें, Which there was no beauty we should desire. जिसमें की कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको चाहते। And when it was made flesh and dwelt among us, it was still no beauty we should desire. और जब वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, अब भी कोई सुंदरता ना थी कि हम उसको चाहते। And now the same thing is today. और अब आज भी वही बात है। There's nothing in a man or woman that can be desired. पुरुष या स्त्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिसकी इच्छा कर सकते हों। But what's in behind there? That's what it is. परंतु ये क्या है जो उसकी वहाँ आड़ में है? ये वही है। Well, you say that fellow I know used to be a drunkard. He used to do this. अच्छा, आप कहते हैं मैं जानता हूँ, ये व्यक्ति शराब पिया करता था, वो ऐसा करता था। I don't care what he used to do. What's hid behind that skin? मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या किया करता था, उस खाल के पीछे क्या छिपा था। What is behind there? That's what counts. That's what the people is blinded. वहाँ पीछे क्या है? यही है जो माना जाता है। यही लोग अंधे हो गए हैं। The skin blinds the people. खाल लोगों को अंधा कर देती है, समझे? They say, I remember that woman used to. I know what she used to, but what about now? वे कहते हैं मुझे याद है कि वो स्त्री, मैं जानता हूँ कि वो क्या किया करती थी, परंतु अब इसके विषय में क्या है? See, them skins that was once on a badger, but now it's hiding the glory of God. समझे? यदि वो खालें जो कभी सुइसों पर होती थीं, परंतु अब ये परमेश्वर की महिमा को छिपा रही है। Got it housed behind it. It was on an animal, but now it's housing the glory of God. लेकर पीछे रखी हुई है, वो जानवरों पर थी, परंतु अब ये परमेश्वर की महिमा को रख रही है। And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity. और इसी प्रकार आज रात्रि को आपकी खाल भी बदल सकती है, परमेश्वर का निवास स्थान बन सकती है,
परमेश्वर मानव स्वभाव में रह रहा है। Look, the old badger skins. We find out behind it was inside of there was the Word. उस पुराने सुइसों की खाल को देखिए, उसके पीछे हम पाते हैं कि वो था, उसके अंदर की ओर वहाँ वचन था। And the Word, there also was the shewbread. और वचन वहाँ भेंट की रोटियां भी थीं। The ark was sprinkled. And what was it? The Shekinah glory was in there. वाचा के संदूक पर छिड़काव था, और वो क्या था? परम प्रधान का तेज वहाँ अंदर था। Now the Word is a seed, and it cannot bring forth until the sun strikes it. अब वचन बीज है, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सूर्य का उजियाला इस पर न पड़े। The sun's got to be up on the seed to make it bear, to make it come forth. जीवित रहने के लिए सूर्य को उस पर चमकना ही है ताकि वो उग सके। And that's the only way you take the Word. See, take the Word of God in your heart and walk into the Shekinah glory. और केवल यही मार्ग है, आप वचन लेते हैं, समझे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लीजिए और परम प्रधान के तेज में चलिए। And when you do, it'll bring shewbread manna that's only given for separated people. और जब आप करते हैं, ये भेंट की रोटियों का मन्ना लाता है, जो कि केवल अलग किए गए लोगों के लिए है। The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. केवल वही इसको खा सकता है, जिसको इसे खाने की अनुमति है, केवल वो लोग जिन्हें इसकी आज्ञा है। He knows it. Paul said you're changing from glory to glory. और इसे जानते हैं, पौलुस ने यहाँ कहा है, महिमा से महिमा में बदल रहे हैं। You see, finally it comes to back to its original glory. आप समझे, अंत में ये अपने उस पर आता है, अपनी मूल महिमा पर वापस आता है। This is like a seed of a morning glory, the seed of a flower. ये प्रातः की शोभा के बीज के समान है, फूल का बीज। It falls into the ground. The seed of corn falls into the ground. ये भूमि में गिरता है, गेहूं का बीज भूमि में पड़ता है। What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. पहली चीज क्या है? वो ऊपर आता है और वो एक छोटा अंकुर है। Then it goes to a tassel. Then from the tassel back to its original grain. तब ये फुंदनी में जाता है, तब फिर बाल से वापस अपने मूल बीज में। Well, that's exactly what the church has done. ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो कलीसिया ने किया है। It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory. ये लूथर से वेस्ली में और अब वापस अपने मूल बीज में, वापस अपनी मूल महिमा में, Back to the glory it was at the beginning. वापस उसी महिमा में जिसमें वो आरंभ में थी। The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west. वो सूर्य जो पूर्व में उदय हुआ, वही सूर्य उन्हीं चीजों को पश्चिम में प्रकट कर रहा है। Changing from glory to glory. महिमा से महिमा में बदल रहा है। It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley. ये पैगन से बदलकर लूथर में और लूथर से वेस्ली में, From Wesley out into Pentecost and on. और वेस्ली से निकलकर पेंतिकोस्टल में और निरंतर आगे बढ़ता गया। Changing from glory to glory, producing the hidden manna. महिमा से महिमा में बदलते हुए छिपा हुआ मन्ना उत्पन्न करता है। And now it's right to bring him back exactly like he was at the beginning. और अब उसे वापस लाने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसा वो आरंभ में था, ये परिपक्व होता है। The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost. उसकी वही सेवकाई, वही यीशु, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा। The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today. वही जो पेंतिकुस्त के दिन नीचे उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज प्रकट हुआ है। From glory to glory to glory, and back to its original seed with the baptism of the Holy Ghost. महिमा से महिमा में, फिर महिमा में अपने मूल बीज पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा वापस आता है। Same signs, same wonders, same baptism, same kind of people acting the same way. उन्हीं चिन्हों के साथ, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के साथ, वही बपतिस्मा, उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। With the same power, the same sensation. उसी सामर्थ, उसी संवेदना के साथ। It's from glory unto glory. ये महिमा से महिमा में। And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. और इस महिमा से अगला बदलाव उस देह में, जो उसकी अपनी महिमा युक्त देह है, जहाँ हम उसको देखेंगे। Abraham saw the same. इब्राहिम ने उसी को देखा। Now notice, we see how it was changed.
अब ध्यान दें, हम देखते हैं ये किस प्रकार बदल गया था। Since Calvary, we are invited to share His glory. कैलवरी के बाद से हम उसकी महिमा में सहभागी होने के लिए आमंत्रित हैं। Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into His body. अब पहले कुरिन्थियों 12 में हमने उसकी देह में बपतिस्मा लिया। By one Spirit we are all baptized, not by one water, one Spirit we are all baptized. एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका बपतिस्मा हुआ, एक पानी के द्वारा नहीं, एक आत्मा हम सबका बपतिस्मा हुआ। That's right. Now, and then we become part of Him. अब ये ठीक बात है। अब तब हम उसके भाग हो जाते हैं। I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not. मुझे आशा है मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा। देखा, मैं आशा करता हूँ मैं नहीं। But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama. परंतु ये एक महान स्वर संगम के समान है जो बजाया जा रहा है या नाटक की भूमिका की जा रही है। I don't know too much about symphonies or drama. मैं स्वर संगम या नाटक के विषय में अधिक नहीं जानता, But I was watching this play. I was talking about Carmen. परंतु मैं ये नाटक देख रहा था। मैं कार्मेन के विषय में बात कर रहा था। When my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen. जब मेरी पुत्री और वे इसमें थे और वे इस स्वर संगम को बजा रहे थे वहाँ उस कार्मेन में। They was acting out. The music was acting out the same thing. वे अभिनय कर रहे थे, संगीत था उसी प्रकार का अभिनय कर रहे थे। That's the way it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ. इसी प्रकार से तब होता है जब आपका पवित्र आत्मा द्वारा मसीह में बपतिस्मा हो जाता है। Now see, many of you has read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf. अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने रूसी रचयिता की वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी जिसने पीटर और भेड़िया की रचना की है, And how they act that out on symbols and everything. और कैसे उसने प्रतिरूपों और हर चीज का अभिनय किया। And anyone who knows the story that's reading it off of a paper और कोई भी जो इस कहानी को जानता है जो कि एक कागज से पढ़ी जाती है and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out. और उस स्वर के संगम को सुन सकता है कि वो कैसे वो नाटक अभिनय करके खेला गया था। Well, they know every change. They can look out here and see the change. क्यों? वे हर बदलाव को जानते हैं। वे यहाँ इस पर कागज को देखकर बदलाव देखते हैं। But now what happens if the composer writes something and we find out that it isn't just acted out right? परंतु अब क्या होता है यदि रचयिता कुछ और लिखता और हम पाते हैं कि ये अभिनय सही नहीं किया गया, We find out then that there's something that happens. There's something like him. तब हम पाते हैं कि वहाँ कुछ हुआ, वहाँ कुछ कमी सी है। When we see them, he who composed it is made it up and wrote it out. जब हम उन्हें देखते हैं, वो जिसने इसे रचा है, तैयार किया है और लिखा है, And then the symphony is playing it, hits a wrong note. और तब स्वर संगम की लय इसे बजा रही है और गलत स्वर देता है। There's something wrong. The director gave the wrong motion. See? तो वहाँ कुछ गड़बड़ है, निर्देशक ने गलत संकेत दिया है। समझे? That's what's the matter today, my Lutheran brethren, और आज यही मामला है मेरे लूथरन भाइयों, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations. That's what it is. मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, मेरे सारे विभिन्न नामधारी कलीसियाओं के भाइयों, यही वो बात है। See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther, Wesley like that. समझे? आप उस स्वर को देने का यत्न करते हो जो लूथर के समय में बज रहा था या वेस्ली, इसी प्रकार से। When actually the music sheet here shows that it's another sheet. जब वास्तविक संगीत स्वर का ये कागज यहाँ ये दिखाता है कि ये दूसरा समय है। देखा? समझे? We can't live in the light of Luther. He was a reformer. हम लूथर के उजियाले में नहीं रह सकते, वो एक सुधारक था। We appreciate his part, but we've played that out. We're way over here at the back of the book now. हम उसके भाग की सराहना करते हैं, परंतु हम उसे बजा चुके। अब हम पुस्तक के अंत में पीछे की ओर हैं। See, we can't play it out like that. समझे? हम नहीं कर सकते, हम इसे उस प्रकार नहीं बजा सकते। Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. अब केवल एक ही मार्ग है कि आप इसे करने के योग्य हों, मेरे भाइयों, वो ये है। And brethren of the world, of the different parts of the world, I might say.
और संसार के भाइयों और संसार के विभिन्न भागों के मैं ये कह सकता हूँ, There's only one way for that director to do. इसका केवल एक ही मार्ग है उस निर्देशक को करने के लिए। He has to get in the same spirit that the composer was in. Then he's got it. उसे उसी आत्मा में आना पड़ेगा जिसमें वो रचयिता था, तब वो इसे ले पाता है। And when the church, the symphony itself, और जब वो कलीसिया, वो स्वर मिलान स्वयं में, where the worlds are watching for these signs and wonders, जबकि संसार इन चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer, जबकि वो कलीसिया और रचयिता और निर्देशक सारे रचयिता की आत्मा में आ जाते हैं, then when we say the days of miracles is past, it don't hit the right note. तब जब वे कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, तो ये सही स्वर नहीं देता। But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, परंतु जब वो इसके साथ एक स्वर भाव में आ जाते हैं और उसी सही आत्मा में, how are you going to do it until the spirit comes down of the composer? Amen. आप ये कैसे कर सकते हैं जब तक कि रचयिता की आत्मा उतर नहीं आती? आमीन। Then when you say the days of miracles never passed, the symphony cries out, Amen. तब जब आप कहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन कभी समाप्त नहीं हुए, तो स्वर कर मिलान चिल्ला उठता है, आमीन। When we hit say Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen. जब हम जोरदार शब्दों में कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो सारा स्वर मिलान चिल्ला उठता है, आमीन। You shall receive power. After this, the Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen. I got it. ये पवित्र आत्मा तुम पर आने के पश्चात तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। स्वर संगम चिल्लाता है, आमीन, मैंने इसे पाया है। There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the Word. तब इसके लिए कोई अनुमान वाली बात नहीं है, सारा स्वर संगम वचन के साथ मेल खाता है। Let's go. That's it. Oh, it's a magnificent thing. बस आगे बढ़ता है, यही बात है। ओह, ये शोभायमान बात है। The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. निर्देशक और रचयिता को एक ही आत्मा में होना चाहिए और इसी प्रकार से संगीतकारों को भी उसी आत्मा में सारे कार्य करने चाहिए। And the world is wondering what's going on. और संसार आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या घटित हो रहा है। The communism they talk about and it made me sick with it. कम्युनिज्म के विषय में वे बात करते हैं और इससे उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। And all this integration and everything else and segregation. Oh, mercy. और ये सारा जुड़ना और सारी बातें और अलगाव, ओ अनुग्रह। Such all this nonsense when the coming of the Lord is at hand. इस प्रकार की सारी अनर्थक बातें जबकि प्रभु का आगमन निकट है। There's something hitting wrong. कहीं कुछ गलत हो रहा है। I'm afraid that the directors got out of the spirit of the composer. मुझे भय है कि निर्देशक लोग रचयिता की आत्मा से बाहर निकल गए हैं। When we get that composer spirit, that original power of God, जब हम रचयिता की आत्मा पाते हैं, परमेश्वर की वो मूल सामर्थ, that the Bible said, man of old was moved by the Holy Ghost to write this Bible. जो कि बाइबल कहती है पुराने लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखी। You'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together. आप दोनों चीनी कागज के टुकड़ों को देखेंगे कि वे पास पास आएंगे, जिस तरह की परमेश्वर की बाइबल और विश्वासी पास पास आएंगे। Because they're both in the same spirit, they're both the same thing, they dovetail right straight together. क्योंकि वे दोनों एक ही आत्मा में हैं, वे दोनों एक ही चीज हैं, वे एक दूसरे में सही मिलान से बैठते हैं। What we need today is directors. That's right. आज हमें क्या चाहिए? निर्देशक। ये ठीक बात है। Back to the Word. Back and believe it, just as it said. वचन पर वापस आएं, वापस आकर और इसका वैसे ही विश्वास करें जैसे कि कहा गया है। Then you see the God Himself. तब आप देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं, That's the unveiling. The drama's made real. ये पर्दे का उठ जाना है, नाटक वास्तविक बन जाता है। Today they say, well, He's a historical God. आज वे कहते हैं कि ठीक है, वो एक ऐतिहासिक परमेश्वर है। We know He crossed the Red Sea. He did all this and He was in the fiery furnace with the Hebrew children.
हम जानते हैं कि उसने लाल सागर पार किया, उसने ये सब किया, और वो आग की भट्टी में हिब्रू बालकों के साथ था। What good's the God of history if he isn't the same today? इतिहास का परमेश्वर कितना अच्छा है यदि वो आज एक सा नहीं है। Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do and ignoring what he's doing. मनुष्य सदा से परमेश्वर की महिमा करता आया है कि उसने क्या किया, सोचते हुए कि वो क्या करेगा और अज्ञानता में है कि वो क्या कर रहा है। That's just in man to do that. मनुष्य में यही है जो वो करता है। And it's the same thing today, my brethren. It's the very same thing. और आज भी यही बात है मेरे भाइयों, आज बिल्कुल यही बात है। Oh my! Let's get back and get the symphony playing right. While the world can see. Oh, आइए वापस चलें और स्वर संगम को सही वहीं बजाएं जहां संसार देख सके। Jesus said, "If I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me." And He's the same yesterday, today, and forever. यीशु ने कहा, यदि मैं इस पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा, मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा, और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer. Everything will be all right. निर्देशकों को संगीतकारों के साथ सही आत्मा में आने दें और रचयिता के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। And we're no guesswork about it. We are identified with Him, man. तब हमारे पास इस विषय में अनुमान कार्य ना होगा, तब हम उसके साथ पहचाने जाते हैं। Hebrews 13:8 said He's the same yesterday, today, and forever. इब्रानियों 13:8 ने कहा है वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। We're identified with Him in Acts 2. हम उसके साथ प्रेरितों 2 में पहचाने जाते हैं। We're identified with them with the same baptism, same thing. हम उनके साथ पहचाने जाते हैं उसी बपतिस्मे में, उन्हीं बातों के साथ। All He was then and all He is, all He was and all He is, we are. Exactly. वो सबका सब जो वो तब था और वो सब जो वो है, सबका सब जो वो था और सारा जो वो है, हम बिल्कुल उसी के समान हैं। Just like if I want to be a true American, जिस तरह की यदि हम सच्चे अमेरिकन होना चाहते हैं, I've got to be identified with everything she was, everything she is. मुझे हर उस चीज के साथ पहचान बनानी होगी जो वो थी, हर उस चीज में जो वो है। I've got to be identified with it. If I am a true American, मैंने इसके साथ अपनी पहचान बनाई है यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ। if I am a true American, then I landed on Plymouth Rock. Amen. I did. यदि मैं सच्चा अमेरिकन हूँ तो मैं प्लेमाउथ चट्टान पर उतरा हूँ। आमीन, मैंने किया। If I'm an American, so did you. You landed on Plymouth Rock with the Pilgrim Fathers. यदि मैं एक अमेरिकन हूँ, इसी तरह से आप भी हैं। आप प्लेमाउथ चट्टान पर अपने पूर्वजों के साथ आए। On Plymouth Rock, when they landed out there, I was with them. So was you, everybody. उस प्लेमाउथ चट्टान पर जब वे आए, मैं उनके साथ था। इस प्रकार से आप भी थे, हर कोई। I rode with Paul Revere, right down the road to warn over danger. मैं सड़क पर पॉल रिवर के साथ घोड़े की सवारी पर था कि लोगों को खतरे से चेतावनी दूं। It's exactly right. ये बिल्कुल ठीक बात है। Right down here at Valley Forge, I crossed the icy Delaware यहाँ डेली फोर्स में मैंने बर्फीले डेलवेयर को पार किया with a bunch of soldiers who half of them didn't have shoes on. उन सिपाहियों के झुंड के साथ जिनमें से आधों के पैर में जूतियां नहीं थीं। I prayed all night with George Washington beforehand. मैंने पहले ही जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ सारी रात प्रार्थना की। I crossed the Delaware with a vision in my heart. We are Americans. मैंने अपने हृदय में एक स्वप्न रखकर डेलवेयर को पार किया, हम अमेरिकन हैं। Yes, sir, at Valley Forge. I certainly did. जी हाँ श्रीमान, वैली फोर्ज में मैंने निश्चय यही किया। I returned thanks with the regional Thanksgiving fathers. I returned thanks to God. मैंने मूल धन्यवाद देने वाले पूर्वजों के साथ धन्यवाद दिया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। If I'm a real American, I was identified there at that table. यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं वहाँ उनके साथ मेज पर पहचाना गया। If I'm a real American, I was identified when I stood with Stonewall Jackson. यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं जब स्टोनवॉल जैक्सन के साथ खड़ा हुआ था तो पहचाना गया था। If I'm a real American, I was identified at the Boston Tea Party. Yes, sir. यदि मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ तो मैं बोस्टन में जलपान के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान। When we refused to have things pulled over our eyes. जब हमने उन चीजों को लेने से अस्वीकार कर दिया था जो हमारी आंखों के सामने रखी गई थी। When I was a real American, I was identified there with that. Yes, sir. Oh my. जब मैं एक वास्तविक अमेरिकन था, जब मैं वहाँ उन बातों के साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान। ओह, I rang the Liberty Bell the first 4th of July in 1776. मैंने पहली स्वतंत्रता की घंटी 4 जुलाई 1776 में बजाई। I rang the Liberty Bell here and declared that we are independent.
मैंने यहाँ स्वतंत्रता की घंटी बजाई और घोषणा की कि हम स्वाधीन हैं। To be a real American, I had to. एक वास्तविक अमेरिकन होने के लिए मुझे होना था। I was identified with her shame in the Revolutionary. When brother fought against, मैं उसकी लज्जा के साथ उसके आंदोलन में पहचाना गया था जब भाई लोग विरोध में लड़े। I've got to bear her shame as same as I have to bear her glory. If I'm an American, I have to be. मुझे उसकी लज्जा में भी वैसे ही सहभागी होना है जैसे उसकी शान में। यदि मैं अमेरिकन हूँ तो मुझे होना ही है। I was identified with her. Yes, sir. मैं उसके साथ पहचाना गया था। जी हाँ। I was identified at Gettysburg down there when Lincoln made his speech. Yes, sir. मैं वहाँ गेटिसबर्ग में वहाँ पहचाना गया जहाँ लिंकन ने अपना भाषण दिया। जी हाँ श्रीमान। I was on Wake Island, over them bloody soldiers' body. मैं वेक आइसलैंड में था उन लहू लुहान सिपाहियों के संग। I rose in Wake Island. On Guam, I helped hoist that flag. मैं वेक आइसलैंड में उठा। गुआम पर मैंने वो झंडा फहराने की सहायता की। I'm a real American. Amen. मैं वास्तविक अमेरिकन हूँ। आमीन। All she is, I am, and proud of it. Yes, indeed. वो जो कुछ भी है मैं हूँ और उस पर घमंड करता हूँ। जी हाँ वास्तव में। All America has been, all she is, I'm still that to be American. सारे अमेरिकन वही हैं जो वो है। अमेरिकन होने के लिए मैं अब भी वही हूँ। Everything she was, I have to be because I'm identified with her. हर चीज जो वो है मुझे भी होना है क्योंकि मैं उसके साथ पहचाना गया। Same thing by being a true Christian. एक सच्चा मसीह होने के नाते भी यही बातें हैं। You have to be identified with it. आपको उसके संग पहचाना ही जाना है। I preached with Moses and with Noah and warned the people of their oncoming judgment to be a real Christian. एक वास्तविक मसीह होने के लिए मैंने मूसा के साथ प्रचार किया और लड़ाई या नूह के साथ और लोगों को आने वाले न्याय से चेतावनी दी। I was with Moses at the burning bush. I saw the pillar of fire. I saw his glory. उस जलती हुई झाड़ी के समय मैं मूसा के साथ था। मैंने आग का खंभा देखा। मैंने उसकी महिमा को देखा। I was with Moses up there in the wilderness. मैं मूसा के साथ वहाँ सुनसान स्थान में था। To be a Christian, I have to be identified with everything God was. To be a Christian. एक मसीह होने के लिए जो भी परमेश्वर था मुझे उसके साथ पहचाना जाना चाहिए। एक मसीह होने के लिए I seen his glory. I heard his voice. Don't try to explain it away from me now because I was there. मैंने उसकी महिमा देखी। मैंने उसकी आवाज सुनी। मुझे अलग करने के लिए उसकी व्याख्या करने का यत्न न करें क्योंकि मैं वहाँ था। I know what I'm talking about. I seen what happened. Yes, sir. मैं जानता हूँ कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि क्या घटित हुआ है। जी हाँ श्रीमान। I was at the Red Sea. मैं लाल सागर पर था। When I seen the Spirit of God move down and part the water from one side. जब मैंने परमेश्वर की आत्मा को नीचे उतरते देखा और जल को एक ओर से दो भाग कर दिया। Not through a bunch of reeds that you're trying to say that, उन पटेरे को झुंड में से होकर नहीं जो कि वो आज कहने का यत्न करते हैं, but through about a 90-foot sea. परंतु लगभग 90 फुट गहरे समुद्र से होकर। I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground across that Red Sea. मैंने परमेश्वर के आत्मा को देखा। मैं मूसा के संग उस सूखी भूमि से निकला, उस लाल सागर से होकर। I stood by Mount Sinai and seen the thunder and lightning falling. मैं सीने पर्वत के समीप खड़ा हुआ और गर्जन और बिजलियां गिरती देखी। I ate manna with them out there. I drank from that rock. I'm still doing it tonight. मैंने वहाँ उसके साथ मन्ना खाया। मैंने उस चट्टान से पिया। मैं आज रात्रि भी वही कर रहा हूँ। I was identified with the manna eaters. मैं उन मन्ना खाने वालों के साथ पहचाना गया। I was identified with them that drunk from the rock. मैं उनके संग पहचाना गया था जिन्होंने चट्टान से पिया। I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down. जब यहोशू तुरई फूंक रहा था तो मैं उसके संग पहचाना गया था और यरीहो की दीवार गिर पड़ी। I was in the lion's den with Daniel. मैं डैनियल के साथ शेरों की मांद में था। I was in the fiery furnace with the Hebrew children. मैं हिब्रू बालकों के साथ आग की भट्टी में था। I was with Elijah on Mount Carmel. मैं कारमेल पर्वत पर एलिया के संग था। I was with John the Baptist and before them critics. मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ उनकी आलोचनाओं के सामने था। I seen the Spirit of God descending. मैंने परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखा। I heard the voice of God say, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in." मैंने परमेश्वर की आवाज को ये कहते सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं वास करने हेतु अति प्रसन्न हूँ। Yes, sir. I sure was identified with him. That's exactly right.
जी हाँ श्रीमान, निश्चय ही मैं उसके साथ पहचाना गया था। ये बिल्कुल ठीक बात है। I was identified there at the grave of Lazarus when they raised up Lazarus. मैं वहाँ लाजर की कब्र पे पहचाना गया जब उसने लाजर को जिलाया। I was identified at the woman at the well when he told her her sins. Yes, sir. मैं उस स्त्री के साथ कुएं पर पहचाना गया जब उसने उसके पाप बता दिए। जी हाँ, I surely was identified with him in his death. निश्चय ही मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया। And I was identified on the first Easter. I raised with him from death. और मैं पहले ईस्टर पर पहचाना गया, मैं उसके साथ मृत्यु से जी उठा। And identified with him in his death. मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में पहचाना गया। I was with the 120 in the upper room. I was identified up there with them. मैं ऊपर वाली कोठरी में 120 के साथ था, मैं उनके संग पहचाना गया था। I feel religious. Oh my! ओ, मैं धार्मिक अनुभव कर रहा हूँ। ओ, I was identified there. I'm one of them. वहाँ मैं पहचाना गया, मैं उनमें से एक हूँ। I was identified. I got the same experience they had. मैं पहचाना गया था, मुझे भी वही अनुभव हुआ जो उन्हें हुआ था। I was there when it happened to be a true Christian. जब ये घटित हुआ तो मैं वहाँ था एक सच्चा मसीह होने के लिए। I witnessed the mighty rushing wind coming. I witnessed that. मैंने तेज वायु प्रवाह आने की गवाही दी, मैंने उसकी गवाही दी। I felt the power of God as it shook. मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया जैसे कि उसने हिला दिया। I was with them and spoke in tongues. मैं उनके साथ था जिन्होंने भाषाएं बोली। I felt the anointing coming and I was with them. मैंने अनुभव किया अभिषेक वहाँ आया, मैं उनके साथ था। I was identified with them when the Holy Ghost began to speak through tongues with them. मैं उनके साथ पहचाना गया जब पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा अन्य भाषा में उनके साथ बोलना आरंभ किया। I was with Peter before the critics in Acts 2. मैं पतरस के साथ प्रेरित 2 में उनके आलोचनाओं के सामने था। When he preached a great sermon and I was identified with him. Yes, sir. जब उसने महान धार्मिक भाषण प्रचार किया कि मैं उनके साथ पहचाना गया था। जी हाँ श्रीमान। And Acts 4, when they assembled together, I was with them when the building shook. प्रेरितों के काम 4 में जब वे एक साथ एकत्र हुए, मैं उनके साथ था जब इमारत हिली। At your prayer meeting, the building shook where they were sitting. I was identified there with them. प्रार्थना सभा के पश्चात सारा भवन जहाँ वे बैठे थे हिल गया, मैं वहाँ उनके साथ पहचाना गया। I preached with Paul on Mars Hill. Yes, sir. मैंने पौलुस के साथ अरियुगुबस में प्रचार किया। जी हाँ श्रीमान। I was with John on the Isle of Patmos and seen his second coming. मैं यूहन्ना के साथ पितमुस टापू पर था और उसका दूसरा आगमन देखा। I was with Luther in the Reformation. सुधार में मैं लूथर के साथ था। I was with Wesley, that firebrand, snatched from the fires. मैं वेस्ली के साथ था कि आगों में से आग की ज्वलन झपट ली। When the great revolt against the Anglican Church, I was there with him. जब एंग्लिकन गिरजे के विरुद्ध महान आंदोलन हुआ, मैं वहाँ उसके साथ था। Here I am tonight, 1964, in Philadelphia, Pennsylvania. और यहाँ मैं आज रात्रि 1964 में फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हूँ। Identified with the same kind of group, with the same kind of an experience. उसी प्रकार के झुंड के साथ पहचाना गया हूँ, उसी प्रकार के अनुभव के साथ। I must be to be a Christian. एक मसीह होने के लिए मुझे होना ही चाहिए। I must stay identified where the Word of God is being manifested. मुझे वहीं पर स्थिर और पहचाना जाना चाहिए जहाँ परमेश्वर का वचन प्रकट होता है। I'm identified with a group that feels the Spirit of God. मैं उस झुंड के लोगों के साथ पहचाना गया हूँ जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को अनुभव किया है। I'm identified with a group that knows He's unveiled. मैं उस झुंड के साथ पहचाना गया हूँ जो जानते हैं कि वो बेपर्दा हो गया है, That knows He's the same yesterday, today, and forever. जो जानते हैं कि वो कल, आज और सदा तक एक सा है, That knows that this is not a fanaticism. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. और जानते हैं कि ये कोई धार्मिक हट नहीं है, ये यीशु मसीह कल, आज और सदा तक एक सा है। I'm identified with that group here tonight. आज रात्रि मैं उस झुंड के साथ पहचाना गया हूँ। Yet they're called a bunch of heretics, yet a bunch of fanaticism on account of the Word of God. तब भी वे नास्तिकों का झुंड कहलाए, अब भी एक धार्मिक हट का झुंड परमेश्वर के वचन के कारण। But I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God and the salvation of them. परंतु मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि ये उनके लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। I'm with them living epistles I spoke of. मैं उनके साथ हूँ जिन जीवित पत्रियों के लिए मैंने बोला। Vindicated, God veiled in human form in men and women. प्रमाणित हुआ, परमेश्वर मानव रूप में पुरुष और स्त्रियों में पर्दे में छुपा हुआ है। Oh God, in His Martha again, unveiled Himself and make Himself known to His people
ओ परमेश्वर ने फिर से अपने मुखौटे को स्वयं हटा दिया है और अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। The great king who laid aside his glory. वो महान राजा जिसने अपनी महिमा को एक ओर रख दिया। Yet a little while and the world won't see me no more. I'll be veiled to them. अब भी थोड़ी देर के लिए और संसार मुझे अब और ना देखेगा, मैं उनके लिए पर्दे में हो जाऊंगा। But ye shall see me, for I'll be with you even in you, all the way to the consummation. परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर होऊंगा। Changing from Luther to Wesley to on, from glory unto glory, I'm still the same God. लूथर से वेस्ली में बदल रहा है, इस तरह से बदलता जाता है, महिमा से महिमा, मैं अब भी वही परमेश्वर हूँ। Going back to the original glory. Hallelujah. जो कि अपनी मूल महिमा की ओर वापस जा रहा है। हालेलुया। He has broken every denominational veil, every sound barrier. उसने प्रत्येक नामधारी गिरजों को तोड़ दिया है, प्रत्येक आवाज के अवरोध को। That sound that says, "Oh, that's fanaticism." He broke right through that. वो आवाज जो कहती है, ओ ये तो धार्मिक हट है, उसने पूर्ण रूप से तोड़ दिया है। The sound that come out of there said, वो आवाज जो वहाँ से आती है और कहती है, "Oh, them people are crazy." He broke right through that veil. Yes, he did. ओ वे लोग पागल हैं, उसने उसको बीच से पूरा तोड़ दिया है। जी हाँ, उसने कर दिया है। Oh, you can't do it, you're nothing but a bunch of fanatics. He broke right through that. ओ तुम इसे नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं, केवल हठ धर्मियों का झुंड हो, उसने उसमें से होकर तोड़ दिया है। No such a thing as divine healing. He broke right through that. दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, उसने उसे भी तोड़ दिया है। Oh, man! Oh, his word said he would. You can't conquer the word of God. ओ अपने वचन के लिए उसने कहा वो करेगा, आप परमेश्वर के वचन को जीत नहीं सकते। There he stands yet tonight, the mighty conqueror. और अब भी आज रात्रि वो वहाँ सामर्थी जीतने वाला खड़ा है। Since he broke every Methodist, Baptist, Presbyterian, every other kind of a veil. जब से उसने प्रत्येक मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हर प्रकार के पर्दे को तोड़ डाला, He still stands among his people tonight, unconquered by traditions. वो आज रात्रि भी अपने लोगों में खड़ा है, जो कि रीति रिवाजों से नहीं जीता जा सका। Let people say what they want to, do what they want to, anything they want to. लोगों को वो जो वो चाहते हैं कहने दो, जो चाहे करने दो, जो भी वे चाहते हैं। God comes breaking right through that sound there. परमेश्वर उस आवाज के अवरोध को तोड़ता हुआ आता है। And remember, they tell me when a plane really breaks that sound there is no limit to its speed. और याद रखें, वे मुझे बताते हैं जब वायुयान वास्तव में उस ध्वनि अवरोधक को तोड़ता है तो उसकी गति की कोई सीमा नहीं होती। Now I'm telling you, when you break that traditional barrier, that Jesus was way back and he isn't now. और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रीति रिवाजों के अवरोध को तोड़ते हैं जो ये बताते हैं कि यीशु पूर्व काल में तो था, अब वो नहीं है। When you find he's the same yesterday and forever, जब आप पाते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, there's no limit to what God would do right here in this convention and show this world what they need. तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि परमेश्वर ठीक यहाँ इस बेदारी सभा में क्या क्या कर सकता है और इस संसार को दिखा दे कि उनकी क्या आवश्यकता है। Not a world's fair, but a world revival that'll be filled and baptized with the presence of the living God. संसार का मेला नहीं, परंतु विश्व बेदारी जो कि भर देगी और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से बपतिस्मा हुआ। And Martha unveiling himself in the human flesh. Hallelujah. मुखौटा स्वयं को मानव देह के पर्दे में छिपा रहा है। हालेलुया। I believe it. Broken every barrier, every veil. मैं विश्वास करता हूँ कि इसने प्रत्येक अवरोध, प्रत्येक पर्दे को तोड़ डाला है। Every veil, nothing could hide his presence. हर एक पर्दा उसकी उपस्थिति से कोई छिप नहीं सकता। When people get hungry in their heart, there's a veil ready to be broke. You can just depend on that. जब लोग अपने हृदय में भूखे होते हैं तो वहाँ एक पर्दा है जो फट जाने को तैयार है, आप केवल उस पर निर्भर कर सकते हैं। In every veil by his great Holy Spirit. And here he stands tonight, the mighty conqueror. प्रत्येक पर्दे को उसके महान पवित्र आत्मा द्वारा फाड़ दीजिए और यहाँ आज रात्रि वो सामर्थ्य जीतने वाला खड़ा है। Same yesterday, today, and forever. कल, आज और सर्वदा एक सा है। Healing the sick, baptizing the believers, just as he always did. बीमारों को चंगा कर रहा है, विश्वासियों को बपतिस्मा दे रहा है, वैसे ही जैसे वो सदा करता आया। He's the mighty conqueror. वो एक सामर्थ्य जीतने वाला है। Doomed devils are on the run. Yes, sir. दंडित शैतान भाग रहे हैं। जी हाँ श्रीमान। They always are when he's around. जब वो आसपास होता है तो वो सदा यही करते हैं। Closing, you might say this. बंद करते हुए मैं ये कह सकता हूँ, There was a
I read a story many years ago about an old violinist. ऐसा था कि मैंने बहुत वर्षों पहले एक बूढ़े वायलिन वादक के विषय में एक कहानी पढ़ी थी। He had an old violin he was going to sell. You've heard the story many times. और उसके पास एक पुराना वायलिन था और वो उसे बेचने पर था। आपने बहुत बार ये कहानी सुनी है। And they wanted to sell it for a certain thing. और वे इसे किसी विशेष चीज के लिए बेचना चाहते थे। And auctioneer said, "Who will give me so and so?" And I believe he's offered a few coins, maybe 50 cents or something. और नीलामी बोलने वाले ने कहा, कौन मुझे इतना इतना देगा? और मुझे विश्वास है उसके कुछ पैसे लगाए गए, हो सकता है 50 सेंट या ऐसे ही कुछ। Going once, going twice. एक हुआ, दो हुआ। Directly a man raised up in the back. He said, "Just a minute." एकदम से एक व्यक्ति पीछे से उठा, उसने कहा जरा एक मिनट। He walked up and got it. Let's think that he played this. वो आया और उसे उठा लिया। हम कल्पना करें कि उसने ये बजाया। There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunged beneath the flood, lose all their guilty stains. Then when he laid it down, there was a dry place. वहाँ एक चश्मा है जो लहू से भरा है, जो कि इमैनुएल की नसों से निकला है। जब पापी उस लहू में डूब जाते हैं, अपने सारे अपराधों के दाग धो लेते हैं, तब जब उसने इसे नीचे रखा तो उस स्थान पर एक भी आंख सूखी न थी। Then he said, "Who offered?" तब उसने कहा, कौन कीमत लगाएगा? One said 5,000, 10,000. It was priceless. एक ने कहा 5,000, 10,000। ये अनमोल था। Why? The old master of the violin had revealed its true quality. क्यों? उस बूढ़े वायलिन के उस्ताद ने उसकी सही विशेषता प्रकट कर दी। Oh, brother, sister, now let the master of this word who wrote it, the great Holy Spirit. ओ भाई बहनों, इस वचन के गुरु को जिसने इसे लिखा, वो महान पवित्र आत्मा Rosin up his bow with love and pull it across your heart. अपने बजाने की कमान को प्रेम के विरोध से रगड़कर और आपके हृदय के आर पार खींचा। There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. You'll see the full value and see the unveiled God come right in view. वहाँ एक चश्मा है जो लहू से भरा है, इमैनुएल की नसों से निकला है। आप उसकी पूरी कीमत देखेंगे और बेपर्दा हुए परमेश्वर को सामने दृष्टिगोचर होते हुए देखेंगे। He's just the same as he was when he fell on the day of Pentecost upon the people. वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो जब पेंतिकुस्त पर लोगों पर आया। When he connoted himself, emptied right into it. That's right. जब उसने स्वयं को उंडेला, अपने आप को उनमें खाली कर दिया। ये ठीक बात है। You say, Brother Branham, I've tried, I've done this, that, the other. आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैंने यत्न किया, मैंने ये या वो आदि आदि किया। One day I was having a meeting at Carlsbad, New Mexico. एक दिन मेरी एक सभा कार्ल्सबेड न्यू मैक्सिको में थी। And we went down in this big old bat den down there, and it was kind of spooky looking. और हम वहाँ एक बड़ी चमगादड़ों की गुफा में गए और ये एक प्रकार से प्रेत ग्रस्त सा दिखाई पड़ता था। We got down there, and the man, when he got down there to this place, he snapped the lights off. और हम वहाँ पहुँचे और जब हम उस स्थान पर पहुँचे तो इस व्यक्ति ने उसने बत्ती बुझा दी। And oh my, you can imagine how dark it was. और ओह, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कितना अंधकार था। It's so dark you could feel it. वहाँ इतना अंधेरा था कि आप उसे अनुभव कर सकते थे। And that's just about the way the times are getting. और ये लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार के समय आ रहे हैं। When we see the church that fails to recognize God's word, जब हम देखते हैं कि कलीसियाएं परमेश्वर के वचन को पहचानने में असमर्थ होती हैं, when you see our daughters of Zion doing the way they're doing, जब आप देखते हैं कि हमारी सयोन की पुत्रियां उसी प्रकार कर रही हैं जैसा वह करती थीं, when you see our brothers that smokes and drinks and tells dirty jokes and things, जब आप देखते हैं हमारे भाई जो धूम्रपान और शराब पीते हैं और गंदे गंदे चुटकुले सुनाते और आदि आदि, is still trying to hold their confession in Christ. और तब भी वो अपने प्रायश्चित को मसीह में पकड़े रहने का यत्न करते हैं। Oh my, it's dark, it's pitch dark. ओ प्रभु परमेश्वर, ये अंधकार है, ये घोर अंधकार है। We see the sign of his coming. हम उसके आने का चिन्ह निकट देखते हैं। It's always dark, it's just before day. वहाँ ये होगा, दिन निकलने से पहले घोर अंधकार होता है। Then the morning star comes out to hail the day and to herald and show that it's coming. तब भोर का तारा दिन की जय जयकार करता हुआ आता है और उसका अग्रदूत बनकर, और ये दर्शाने के लिए कि वो आ रहा है। Notice, in there, when they turn that off, there's a little girl just screamed to the top of her voice. ध्यान दें,
उसमें जब उन्होंने बत्ती को बुझाया तो वहाँ एक छोटी सी लड़की थी जो कि बहुत जोर से चीखी। And there's a little boy standing by the guide, और वहाँ एक छोटा लड़का था जो कि गाइड के पास खड़ा था। and he seen that guide when he switched the lights off like that. उसने जब मार्गदर्शक को देखा जब उसने बत्तियों को इस प्रकार से बुझाया, And that little sister was just about to have a fit. और वो छोटी बहन बेहोश होने को हो गई थी। She screamed and jumped up and down. वो चीख रही थी, ऊपर नीचे कूद रही थी। Oh, what's going to happen next? What's the matter? What's the matter? ओ, अब क्या होने जा रहा है? क्या मामला है? क्या मामला है? You know what he screamed? आपको मालूम है कि वो क्या चिल्लाया? He said, "Don't fear, little sister. There's a man here who can turn on the lights." उसने कहा, छोटी बहन मत डर, यहाँ एक व्यक्ति है जो बत्तियां जला सकता है। Listen, little sister, you might think we're small and in the minority, छोटी बहन, सुन, तू सोच सकती है कि हम छोटे हैं और थोड़े से हैं, but don't fear. There's a man here who can turn on the lights. परंतु डर मत, यहाँ एक व्यक्ति है जो कि बत्तियों को जला सकता है। That's the Holy Spirit. You believe it? वो पवित्र आत्मा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to keep you. आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने सरों को झुकाएं। मुझे खेद है कि आपको इतनी देर तक रुकाए रखा है। Oh, great God of heaven, unveiling yourself, unfolding yourself, making yourself known, the great King of glory. ओ स्वर्ग का महान परमेश्वर स्वयं का पर्दा उठा रहा है, स्वयं को प्रकट कर रहा है। महिमा का वो महान राजा अपने आप को प्रकट कर रहा है। Take these little illustrations tonight and let them fall down at the hearts of the people. आज रात्रि इन छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर और उन्हें इन लोगों के हृदय की गहरा में बैठ जाने दें, And may we see that unveiled one, और होने दे कि हम उस बेपर्दा हुए को देख सकें, that one who came down and rent the veil of the temple, वो जो नीचे उतर आया और मंदिर के पर्दे को फाड़ डाला, and then went right out of that veil, come right down into human veils again on the day of Pentecost. और तब उस पर्दे से बाहर निकल आया और पेंतकुस्त पर फिर से मनुष्य के पर्दे में आ गया। Has ever been the same, changing from glory to glory. सदा एक सा ही रहा, महिमा से महिमा में बदलता चला गया। And now we're right back like all nature acting, और अब हम फिर से सारी प्रकृति के समान कार्य कर रहे हैं, right back to the original seed, वापस फिर से मूल बीज में, right from one church age to another. ठीक एक कलीसिया काल से दूसरी में। And in this last age here we are right back to the original thing that fell on the day of Pentecost. और यहाँ इस युग के अंत में हम फिर से उसी मूल चीज पर हैं जो कि पेंतिकोस्त के दिन बोई गई थी। To fulfill every scripture, the light in the evening time, हर पवित्र वचन को पूरा करने के लिए सांझ के समय उजियाला है, and the works that I do shall you also, and so many things that you promised in your word. और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, और बहुत सी चीजें जिनकी कि आपने वचन में प्रतिज्ञा की है। Father, if there be one here who has never broke through that veil yet, पिता, यदि यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अभी तक उस पर्दे को तोड़कर बाहर न आया हो, or if there be one here who's just impersonated someone who has went through the veil, give grace tonight, Father. या यदि कोई यहाँ ऐसा हो जो कि केवल उसकी नकल कर रहा हो जो पर्दे से बाहर निकल कर आया है, पिता आज रात्रि अनुग्रह करें। May they see that mighty conqueror standing here, होने दे कि वे उसे देख सकें कि सामर्थी जयवंत यहाँ खड़ा है, full of grace and power to forgive. Grant it, Father. अनुग्रह से परिपूर्ण और क्षमा करने में सामर्थी, पिता इसे प्रदान करें। And while our heads are bowed, जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, would there be some in here, how many might I say that, would say, क्या कोई यहाँ पर है जो कितने, क्या मैं ये कह सकता हूँ, कहेंगे, Brother Branham, I'm lifting my hand. Pray for me. भाई ब्रनम, मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। Just keep your head down and raise your hand. केवल अपने सिर को झुकाए रखें और अपना हाथ खड़ा करें। I want to break through every veil so I can really see the conqueror. मैं हर पर्दे को तोड़ देना चाहता हूँ जब तक मैं उस सामर्थ्य जीतने वाले को वास्तव में न देख लूं। God bless you. My, the hands up in the balconies to the right. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ हाथ ही हाथ, सीधे हाथ की ओर बालकनी में, परमेश्वर आपको आशीष दे। Balconies to the back. Rick. God bless you. Be real honest. पीछे बालकनियों में, परमेश्वर आपको आशीष दे, वास्तव में ईमानदार रहें। To the left. Raise your hand. बाईं ओर अपना हाथ उठाएं। Say, Brother Branham, I might have been a Christian for years, कहिए, भाई ब्रनम, मैं बहुत वर्षों से मसीही हो सकता हूँ, but really, I've never come through that veil. परंतु वास्तव में मैं उस पर्दे से बाहर नहीं आया। I've really never done it. I haven't got that what they had then. मैंने वास्तव में ये नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है जो तब उनके पास था। Today we got, I'm a hot-bedded plant. आज हमें मिल गया है, मैं गर्म क्यारी में बोया हुआ पौधा हूँ। Take a flower that's raised in a hotbed. You have to bathe it, pet it, spray it,
water it. एक फूल को लें जो सड़ी खाद की क्यारी में बोया गया हो, आपको देखभाल करनी पड़ेगी, पालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा। But that original plant that grows out there on the desert, परंतु वो मूल पौधा जो वहाँ रेगिस्तान में उगता है, same kind of a flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's a real. उसी प्रकार का फूल दिखाई पड़ता है। उसे जरा सा भी पानी नहीं मिलता, परंतु उस पर कीड़े नहीं आते। वो असभ्य सा, वो वास्तविक है। Could you compare Christianity with Christianity today with what it was then? क्या आप मसीहत की आज की मसीहत से तुलना कर सकते हैं उससे जो वो पहले थी? Could you imagine this group, what we call Christians today across the world? क्या आप इस झुंड की कल्पना कर सकते हैं जिसे आज हम सारे संसार में मसीही कहते हैं, Being like those was after Pentecost? उन लोगों के समान जो पेंतिकुस्त के पश्चात हुए, Babied and patted and from one church to another. देख रेख की गई, पालन पोषण किया गया और एक एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया। Say something you don't like, get up and walk out. और ऐसा कुछ कहिए जो आपको पसंद नहीं है और खड़े होकर बाहर चले गए। Oh, could you imagine that? No. What is the matter? It's a reproduction. और ओ, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नहीं। क्या मामला है? ये पुनरावृत्ति है। Michelangelo, that created the monument of Moses. माइकल एंजेलो, जिसने मूसा के स्मारक की रचना की, You can get a reproduction of that very cheap. आप उसकी नकल बहुत कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं। But the original, the one who painted the Lord's Supper, परंतु मूल, वो जिसने प्रभु भोज को रंगों में चित्रित किया, I guess that original painting would run into millions of dollars, if you could even buy it. मैं समझता हूँ कि मूल चित्र लाखों डॉलर का होगा यदि आप उसे खरीद सकें। I don't even know where it's at. वो कहाँ है मुझे ये भी पता नहीं, But you can buy a cheap reproduction of it for about $1.98. You can. परंतु आप उसकी नकल कम दामों में लगभग $1.98 में खरीद सकते हैं। And that's the way it is today. और आज भी इसी प्रकार से है। A cheap Christian, a reproduction, just a church joiner. एक सस्ता मसीही, एक नकल, केवल एक कलीसिया का सदस्य। You can buy them out for a cigarette or a common drink. आप उन्हें सिगरेट में खरीद सकते हैं, ये एक साधारण जलपान में। Or for a woman with cut hair, painted lips. You can buy her for anything in the fashions of the world. या एक बाल कटी, रंगे होठों वाली स्त्री से आप उस स्त्री को संसार के किसी भी फैशन से खरीद सकते हैं। But you can't touch that genuine. परंतु आप एक सच्चे को छू नहीं सकते। I've seen in full view the same yesterday, today, and forever. मैं उसे संपूर्ण रूप में देख रहा हूँ, कल, आज और सदा तक एक सा है। Oh, Christian, don't you want to be a real Christian? ओ मसीहो, क्या तुम एक सच्चे मसीही नहीं होना चाहते? If there's any who didn't raise your hands, will you do it while I'm just going to pray? यदि कोई ऐसा हो जिसने अपने हाथों को ना उठाया हो, क्या आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करेंगे? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। God bless you. God bless you. Oh, that's just fine. Just look at it. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ, देखते हुए कितना अच्छा है। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, Thy word shall not return to Thee void. तेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा। You is the one made the promise. I'm only responsible for saying that you said it. तू ही है जिसने प्रतिज्ञा की थी, मैं तो केवल जो तूने कहा है उसे कहने के लिए उत्तरदायी हूँ। I'm just repeating your words. मैं केवल तेरे वचनों को दोहरा रहा हूँ। You said, He that heareth my word and believeth on Him that sent me has eternal life. तूने कहा वो जो मेरा वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा उसके पास अनंत जीवन है। You promised it. तूने ये प्रतिज्ञा की है। And Lord, we know we have them reproductions today. Many that say they believe when they don't. It shows up. और प्रभु हम जानते हैं आज हमारे पास वे नकलें हैं, उनमें से बहुत से ये कहते हैं कि उन्होंने विश्वास किया है जबकि वे नहीं करते, ये दिखाई पड़ता है। But Lord, there's some genuine too. परंतु प्रभु इनमें कुछ सच्चे भी हैं। I pray that you'll just grant in here tonight मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि यहाँ आप प्रदान करेंगे that every man and woman, boy or girl, no matter what nation they are, कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री, लड़का या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं कि वे किस राष्ट्र के हैं, what color they are, what church they belong to. वे किस रंग के हैं, वे किस कलीसिया से संबंधित हैं। Oh God, fill them. ओ परमेश्वर उन्हें भर दे। May they see the real manifestation of that same Jesus today right among us. होने दे कि वे उसी यीशु का वास्तविक प्रकटीकरण आज हमारे मध्य में देख सकें, As He was at the day of Pentecost, when He revealed Himself for this age, being the Holy Ghost. Grant it. जैसा कि उस पेंतिकोस्त के दिन था जब उसने स्वयं को पवित्र आत्मा के रूप में आज के युग के लिए प्रकट किया। इसे ग्रहण करें। Seeing the words fulfilled
The prophecies come to pass. वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। We compare today what's called the church of the world or the world council of churches. आज हम जो संसार में कलीसियाएं कहलाती हैं उनकी तुलना करते हैं, या गिरजे विश्व परिषद वर्ल्ड काउंसिल से, And compare that with the promise on Pentecost. और उसकी तुलना पेंतिकोस्त की प्रतिज्ञा से करते हैं। There's no comparison at all. इसकी आपस में कोई तुलना नहीं है। We cannot get our dirty clothes washed on that ticket. हम उस टिकट पर अपने गंदे कपड़ों को नहीं धो सकते। But Lord God, if we'll come back to that fountain, there's a cleansing process. परंतु प्रभु परमेश्वर, यदि हम सोते के पास वापस आ जाएंगे तो वह सफाई का साधन है। Then our experience in God's Word will match one another. तब हमारे अनुभव और परमेश्वर के वचन एक दूसरे से मेल खाएंगे। Then we can claim our possession. तब हम अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। Grant it, Lord, tonight as I commit these people in your hands. प्रभु इसे प्रदान करें, जैसे कि आज रात्रि मैंने इन लोगों को तेरे हाथ में सौंप दिया है। Give to each one what we have need of, Father. We ask in Jesus' name. Amen. पिता, जो हमें आवश्यकता है हम में से प्रत्येक को दें, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Thank you a lot for standing and waiting a long time. I'm sorry I kept you to 10 minutes after 10. खड़े रहने के लिए धन्यवाद, बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के लिए, और मुझे खेद है कि 10 बजे के बाद 10 मिनट तक मैंने रोके रखा। God be with you till see you in the morning. I turn the service now to, I suppose, to Master Sermon. जब तक मैं आपको प्रातः न देखूं, परमेश्वर आपके साथ रहे। अब मैं इस सभा को, मैं समझता हूं, सभा को सभापति को देता हूं।